چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے سپریم کورٹ میں مقدمات کی سماعت کے لیے آج سے شروع ہونے والے پہلے ہفتے کی کاز لسٹ جاری کر دی۔ آج سے 1 نومبر تک کے لیے ریکارڈ تعداد 968 مقدمات سماعت کے لیے مقرر۔ سپریم کورٹ میں 8 ریگولر بینچز مقدمات کی سماعت کریں گے۔ پہلا بینچ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس شاہد بلال حسن پر مشتمل۔ چیف جسٹس کا بینچ 140 مقدمات کی سماعت کرے گا۔ سپریم کورٹ کے باقی بینچز بھی اتنے ہی مقدمات کی سماعت کریں گے۔ جسٹس طارق مسعود اور جسٹس مظہر عالم میاں پر مشتمل بینچ 70 مقدمات کی سماعت کرے گا۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں عدالت عظمیٰ کا پہلا فل کورٹ اجلاس آج دوپہر 1 بجے ہوگا۔ انسدادی دہشت گردی عدالت کے انتظامی ججز کا اجلاس 7 نومبر کو بلا لیا گیا۔ سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس 8 نومبر کو طلب۔ حکومت نے 27ویں آئینی ترمیم کے لیے کمر کس لی۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے وکلاء آج سر جوڑ کر بیٹھیں گے۔ 27ویں آئینی ترمیم میں صوبوں کے حقوق کے حوالے سے خدشات کو دیکھا جائے گا۔ مولانا فضل الرحمان MKM سمیت دیگر جماعتوں کو اعتماد میں لیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آئینی ترمیم کی منظوری کا کریڈٹ اتحادی جماعتوں کو جاتا ہے۔ پہلے بھی عوامی خدمت کے پیچھے نہیں ہٹے، اب بھی نہیں ہٹیں گے۔ ملکی معاشی اشاریہ مثبت ہونے سے مہنگائی میں اضافہ اور واضح کمی ہوتی نظر آ رہی ہے۔ بلاول بھٹو کی ملاقات میں 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کو تاریخی قرار دیا۔ کہا امید ہے اب عدالتوں کے ذریعے وزراء اعظم کو گھر بھیجنے کا سلسلہ رک جائے گا۔ غیر جمہوری طاقتوں کا راستہ روکنے کے لیے آئینی ترمیم کارگر ثابت ہوئی ہے۔ ہم جمہوریت اور پارلیمنٹ کی مضبوطی کے لیے مل کر چلیں گے۔ مزید آئینی ترامیم کے بارے میں کوئی علم نہیں۔ اگر سپریم کورٹ آئین تبدیل کر سکتی ہے تو کیا پارلیمنٹ کو یہ حق نہیں؟ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کہتے ہیں کہ آئینی ترمیم پر MKM نے ووٹ کے لیے کوئی ڈیمانڈ نہیں دی ہے۔ مخصوص نشستوں پر الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن تک کچھ نہیں کہہ سکتے۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کی وزیر اعظم اور بلاول کی ملاقات میں 27ویں آئینی ترمیم پر کوئی بات نہیں ہوئی۔ آئینی ترمیم میں جو کچھ ہوگا وہ متفقہ طور پر ہوگا۔ طے ہوا ہے کہ خورشید شاہ کی صدارت میں کمیٹی کام جاری رکھے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے مسودے پر اتفاق نہیں ہوا تھا۔ PTI بنیادی طور پر 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف ہے۔ سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں ہم چاہتے تھے مولانا فضل الرحمان ترمیم کی حمایت نہ کریں۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں اپوزیشن جماعتیں بہت جلد حکومت کے خلاف تحریک شروع کریں گی۔ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہمارا اتحاد تھا، مستقبل میں بھی رہے گا۔ بشرا بی بی اور بانی PTI کی بہنوں کی رہائی کسی ڈیل کا نتیجہ نہیں۔ بشرا بی بی نے بہادری سے 9 ماہ جیل کاٹی، بانی PTI پر جھوٹے مقدمات بنائے گئے۔ رمضان سرکاری حج پیکج 10,65,000 سے 10,75,000 کے درمیان رکھنے کی تجویز۔ حج کوٹے کے مطابق 1,79,210 عازمین حج کی سعادت حاصل کر سکیں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم نے حج پالیسی کابینہ اجلاس میں منظوری کے لیے پیش کرنے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعظم نے پہلے حج پالیسی کی سرکولیشن کے ذریعے منظوری لینے کی اجازت دی تھی۔ احد چیمہ نے حج پالیسی سرکولیشن کی بجائے کابینہ اجلاس میں پیش کرنے کی تجویز دی۔ وزارت مذہبی امور نے حج پالیسی منظوری کے لیے وفاقی کابینہ کو بھجوائی ہے۔ حج کوٹا گورنمنٹ اور پرائیویٹ حج اسکیم میں 50% کے تناسب سے تقسیم ہوگا۔ ذرائع نے کہا کہ حج پالیسی میں اسپانسرشپ اسکیم بھی تجویز دی گئی ہے۔ عازمین حج کے لیے سعودی حکومت سے منظور شدہ ویکسینیشن کرانا لازمی قرار۔ قومی ٹیم کو نیا کپتان مل گیا۔ محمد رضوان ون ڈے اور T20 فارمیٹ میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان مقرر۔ سلمان علی آغا کو نائب کپتانی کے فرائض سونپ دیے گئے۔ بابر اعظم، نسیم شاہ اور شاہین شاہ کی ٹیم میں واپسی۔ تینوں کھلاڑی دورہ آسٹریلیا میں ان ایکشن ہوں گے۔ زمبابوے کے خلاف آرام دیا جائے گا۔ کپتان محمد رضوان بھی زمبابوے کے خلاف T20 میں میدان میں نہیں اتریں گے۔ فخر زمان، شاداب خان، افتخار احمد اسکواڈ سے آؤٹ۔ عامر جمال، عرفات منہاز، فیصل اکرم، حسیب اللہ، محمد عرفان خان اور سائم ایوب کا ون ڈے میں ڈیبیو متوقع۔ جہانداد خان اور سلمان علی آغا کو پہلی مرتبہ T20 اسکواڈ میں شامل کیا گیا۔
पीसीबी का कौमी क्रिकेट टीम के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान। साबिक कप्तान सरफराज अहमद, हसन अली, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद नवाज सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से महरूम। फकर जमान, इमामुल हक, उसामा मीर, अम्माद वसीम भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हासिल ना कर सके। शाहनवाज धानी, मोहम्मद हारिस और जमान खान को भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की पेशकश नहीं की गई। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ए कैटेगरी में बरकरार। शाहीन आफरीदी और नसीम शाह की बी कैटेगरी में तनज़्ज़ुली। शान मसूद की बी कैटेगरी में शमूलियत कप्तानी से मशरूत। अब्दुल्ला शफीक, हारिस रऊफ, इब्रार अहमद, नौमान अली, साइम अयूब, साजिद खान, शादाब खान, सऊद शकील और सलमान अली आगा को सी कैटेगरी की पेशकश। आमिर जमाल, मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद हुरैरा, मीर हमजा, खुरम शहजाद, मोहम्मद अली, उस्मान खान, इरफान खान न्याजी, हसीबुल्लाह खान, अब्बास आफरीदी और कामरान गुलाम को डी कैटेगरी की ऑफर। कप्तान मुस्तकिल नहीं, कप्तानी का फैसला परफॉर्मेंस देखकर किया जाए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि बाबर आजम ने राबिता किया और कहा कि कप्तानी नहीं करना चाहता। फखर जमान के ट्वीट का इशू था, लेकिन वो फिटनेस मसाइल का शिकार भी हैं। सिलेक्शन कमेटी किसी खिलाड़ी को ना खिलाए तो तनकीद की इजाजत नहीं देंगे। कौमी टीम के सेलेक्टर आकिब जावेद कहते हैं, मुल्तान और रावलपिंडी के ग्राउंड स्टाफ ने पिच की बेहतरी के लिए मेहनत की। हमने इंग्लैंड के खिलाफ होम कंडीशंस का फायदा उठाया। खिलाड़ी बॉलिंग बैटिंग को मजीद बेहतर करें। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास 2 रोज के वक्फे के बाद आज होंगे। सेनेट का इजलास चेयरमैन सैयद यूसुफ रजा गिलानी की सदारत में दिन 3 बजे शुरू होगा। कौमी असम्बली इजलास स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत शाम 5 बजे होगा। कौमी असम्बली इजलास का 6 निकाती एजेंडा जारी। तवज्जो दिलाओ नोटिस और नुक्ता एतराज शामिल। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ सदर मुमलिकत के खिताब पर तहरीक तशक्कुर पेश करेंगे। तहरीक इंसाफ की एहतजाज की हिकमत अमली तब्दील। सियासी कमेटी की मुल्क भर में जलसों की मंजूरी। 1 नवंबर को पेशावर, 8 नवंबर को कोयटा और फिर कराची में जलसे होंगे। सियासी कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में बानी के केसेस की बाकायदा पैरवी की हिकमत अमली की मंजूरी भी दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस की बाकायदगी से पैरवी करने का फैसला। जुल्फी बुखारी की दरखास्त पर 20 से ज़ायद बरतानवी अरकान पार्लियामेंट का अपनी हुकूमत को खत। बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालिबा। लिवरपूल रिवर्स साइड के रुकने पार्लियामेंट किम जॉनसन ने बरतानवी सेक्रेटरी खारजा डेविड लेमी को खत में लिखा, बरतानवी हुकूमत का फर्ज बनता है वो हुकूमत पाकिस्तान से बात करे और बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कोशिश करे। साबिक वज़ीर आज़म की कैद का मकसद इन्हें सियासी ओहदे के लिए इंतखाब लड़ने से नाअहल करार देना था। मुसलसल नज़रबंदी मुल्क में जमहूरियत के लिए संगीन खतरे की नुमाइंदगी करती है। खत में तमाम जमातों के हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अरकान के दस्तखत मौजूद। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए इस्राइली लॉबी सरगर्म। ऐसा महसूस हो रहा है इनको रिलीफ दिया जा रहा है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम इमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, गोल्ड स्मिथ की ये लॉबी चाहती थी बानी पीटीआई को रिलीफ मिले। बानी पीटीआई की जेल मुलाकातों पर पाबंदी खत्म हो गई। बुशा बीबी को रिहाई मिल गई। ये ताने बाने इसी लॉबी से मिलते हैं। इस्राइली लॉबी बानी पीटीआई को मजलूम बनाकर पेश कर रही है। इनको इलेक्शन के लिए इस्राइल और भारत से फंडिंग हुई। फॉरेन फंडिंग केस में कोई चीज पोशीदा नहीं। जो कहते थे हमारी हुकूमत को साजिश से हटाया गया, आज ये हुकूमत के पैरों में गिरे हुए हैं। बानी पीटीआई पाकिस्तान के खिलाफ इस्राइल का एटमी हथियार है। खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत पेशावर की फैक्ट्री में लगी आग ताहाल बेकाबू। डायपर और टिश्यू बनाने वाली फैक्ट्री में धमाके के बाद दोबारा आग लग गई। रेस्क्यू एहलकार आग बुझाने में मसरूफ। केमिकल फैलने के बायस आग पर काबू पाने में मुश्किलात का सामना। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग के बायस फैक्ट्री की इमारत शिकस्ता हो चुकी। गिरने का खदशा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, सारी मशीनरी वज़ीर आला एहतजाज में इस्तेमाल करते हैं, इसलिए आग पर काबू नहीं पाया जा सका। साबिक गवर्नर हाजी गुलाम अली की भी सूबाई हुकूमत पर तनकीद। मुतासिरा फैक्ट्री के दौरे के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सूबे के दारुल खिलाफा में फैक्ट्री में लगी आग पर कई घंटों बाद भी काबू न पाया जा सका। शहरी इदारों ने अगर कब्जा माफिया को लगाम नहीं डाली तो ये हुनर हमें आता है। सियासी इख्तलाफ को परे रख कर अब शहर की तामीर और तरक्की के लिए साथ बैठना होगा। रहनुमा MQM डॉक्टर फारूक सत्तार का मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान सुरजानी टाउन के ज़ेरे एहतमाम विजन ऑफ फ्यूचर के उन्वान से तकरीब से खिताब। कहा, मिलकर तरक्की को फरोग देने का अमल शुरू करना होगा। सुरजानी टाउन में कब्जा माफिया भी होश के नाखुन है।
खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की दो मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 4 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान और जिला खैबर में दो मुख्तलिफ ऑपरेशन शदीद फायरिंग के तबादले में खवारजी इंसाफुल्लाह समेत 2 खवारिज हलाक हुए। जिला खैबर में ऑपरेशन के दौरान 2 खवारिज हलाक, 3 को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। सदरा और वज़ीर आज़म का दहशत गर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर का फितनाल खवारिज के मुकम्मल खात्मे तक दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने के अज़्म का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क से दहशत गर्दी की अफरीद के मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। टैक्स गोशवारे की दूसरी डेडलाइन खत्म होने में 4 रोज बाकी। कानूनी चाराजोई और सहूलियात छीनने का डर, बिजली, गैस, मोबाइल सिम्स की बंदिश से बचने के लिए फाइलर्स तेजी से बढ़ने लगे। साल 2024 में इनकम टैक्स गोशवारों की तादाद 48 लाख से भी तजावुज। फाइलर्स की तादाद 100 से जायद और 100% इजाफे के साथ 48 लाख से तजावुज कर गई। अब तक गोशवारों के साथ 123 अरब रुपए से ज्यादा टैक्स भी जमा कराया गया। जमा होने वाला टैक्स पिछले साल से 66 अरब रुपए ज्यादा है। भारत में अमृतसर से चलने वाली स्मोक ज़दा हवा का दबाव, लाहौर के औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स में गैर मामूली इजाफा। बागों के शहर लाहौर का AQI 696 पर जा पहुंचा। माहौलियाती इमरजेंसी नाफिज। माहिरीन माहौलियात की शहरियों को मास्क और गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत। कहा फ़िज़ाई म्यार ख़राब होने के सबब नाक, आँख और गले की बीमारियाँ फैल रही हैं। शहरी ज़्यादा पानी पिएँ और पानी से बार बार चेहरे को धोएँ। पोलियो फिर आसेब बन गया। मुल्क के मजीद 16 अजला में पोलियो वायरस की तस्दीक। लाहौर, डेरा गाजी खान, चमन, शहीद बेनज़ीराबाद, बदीन, सखर, हैदराबाद के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक हो गई। पेशावर और इस्लामाबाद से जमा किए गए सीवरेज में भी पोलियो वायरस की तस्दीक। रवां साल मुल्क में अब तक 41 पोलियो केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। रूसी फेडरेशन की फेडरल असेंबली की फेडरेशन काउंसिल की स्पीकर 3 रोजा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गईं। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें। सेनेट के खुसूसी इजलास से खिताब भी करेंगी। रूसी स्पीकर के दौरे के दौरान कई अहम मुज़ाकरात और स्ट्रेटेजिक मौज़ूआत पर बातचीत मुतवक्के। रूस के साथ माशी ताउन, तवानाई के मनसूबे और दिफाई ताउन समेत दीगर अहम उमूर पर पेशरफ्त का इम्कान। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका अफवाज के काउंटर टेररिज्म डोमेन की चिराट में मुश्तरका मश्क। इकबाल अव्वल की इख्तितामी तकरीब। मश्क में स्पेशल सर्विसेज ग्रुप, पाकिस्तान आर्मी और जमहूरिया जनूबी अफ्रीका की स्पेशल फोर्सेज की टीमों ने हिस्सा लिया। इख्तितामी तकरीब में कमांडेंट स्पेशल ऑपरेशन स्कूल ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। दस्ते का पेशावराना महारत के आला तरीन मेयारात का मुजाहिरा। फ़लस्तीन और लेबनान की आवाम के लिए इमदाद का पहला ज़मीनी काफ़िला इस्लामाबाद से रवाना। NLC के 2 काफ़िले 100 टन ग्राम खेमे और कंबल लेकर उर्दन रवाना हुए। फ़लस्तीन और लेबनान के सफ़ीरों का पाकिस्तान की बेलौस इंसानी इमदाद पर इज़हार तशक्कुर। फ़लस्तीनी सफ़ीर ने कहा, पाकिस्तान की इंसानी दोस्ती और हमदर्दी उम्मीद की किरण है। लेबनानी सफ़ीर बोले, पाकिस्तान की इमदाद से जंग से मुतासरा आवाम को बहुत ज़रूरी सहूलियात मिलेंगी। साबिक और मौजूदा क्रिकेटर फ़खर ज़मान को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ना देने पर हैरान। मोहम्मद आमिर का कहना है कि पाकिस्तान के पास वाइट बॉल में फ़खर ज़मान वाहिद प्लेयर हैं। देखकर हैरानी हुई कि फ़खर ज़मान वाइट बॉल टीम में मौजूद नहीं। यासिर हमीद का कहना है कि क्या फ़खर ज़मान के अलावा कोई और रह गया है। उस्मान शनबारी कहते हैं, फ़खर ज़मान को इन पर तरजीह दूंगा जो सूरत हाल देखते हुए वाबस्तगियाँ करते हैं। सुहेब मकसूद का कहना है, फ़खर ज़मान का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ना होना महज लिखने में गलती नजर आता है। मेरा एक ग्रुप है और वो पाकिस्तान टीम का ग्रुप है। कौमी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना है कि हमारा कॉम्बिनेशन इस वक्त बिल्कुल दुरुस्त है। जितनी मुशावरत और बहस होगी इतने अच्छे खिलाड़ी टीम में आएंगे। मैं बतौर कप्तान खुद को बादशाह समझूं तो सब कुछ खराब होगा। मेरी नज़र में टीम में शामिल तमाम खिलाड़ी कप्तान हैं। कोई चीज़ पाकिस्तान टीम के लिए बेहतर हो रही है तो इस पर सबको स्टैंड लेना चाहिए। पोलो इन पिंक का फाइनल टीम पिंक ने 6-7 से जीत लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो पोलो ग्राउंड लाहौर पहुंचे। बरतानवी हाई कमिश्नर के साथ पोलो फाइनल का मैच देखा। फातेह टीम के खिलाड़ियों में शील्ड्स तकसीम की। मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो ने कहा, मर्दों के साथ खवातीन को भी पोलो खेलते देखकर खुशी हो रही है। पीपल्स पार्टी खवातीन को मजबूत बनाने के लिए इकदाम कर रही है। कैंसर से मुतालिक आगाही के लिए पोलो मैच का इनेकाद खुशाइंद है।